Welcome, friends. Today, for the subject of the advanced Java programming. So, in this session, today we start. Okay. So, in this session, we cover about that AWT controls. So, AWT controls, that is the label one and button controls. So, we start the session. This diagram, I think all of you knowing that in previous lecture, just I revise. Object is the main class that is available in the Java language package. In component class, under this component, multiple controls are available: buttons, check label, checkbox, choice, list. Then container object, container class. Then window, frame, dialog, applet. Applet is related with the panel and frame is related with the window. So in this session we are doing the programming by using the frame. Why? Because we cover the frame in the previous lecture. So first of all, if you start the programming before, you know that exactly the visual representation of the any object. So most of the times you become the familiar with the all these controls. Why? You use the so many times these controls in the browsing the web page or the website. The first one is the simple one, is the click me. It is the button, it is the push button. Means what? If user is do some any end operation, means after execution for the programming, so we use the button is the important one. It is the button means for the further processing we use always submit, या उसमें सबमिट हम जब बोलते हैं तो बटन के कंट्रोल हम यूज़ करते हैं. तो चेक बॉक्स, यू नो दैट चेक बॉक्स, सिंगल चेक बॉक्स, यहाँ पे आप मल्टीपल चेक बॉक्स भी दे सकते हो. और यहाँ पे जो हमारा लिस्ट अवेलेबल है, उसके बाद में कम्बो बॉक्स है, उसके बाद में वर्टिकल स्क्रॉल बार है, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, उसके बाद में यहाँ पे जो हमने लिया है वो जो टेक्स्ट एरिया है, उसके बाद में ये टेक्स्ट फील्ड है, उसके बाद में देयर इज आल्सो वन सिंपल वी से दैट द बटन change thing is the another one button, and then these are the option button. So in the this is your the for your the syllabus. If you just see the practical number 1, then you have to create by using all these control one simple assignment, that is by your biodata. In this biodata you just type your the first name, last name, all these things that is related with you, education qualification or more. So for creating the biodata, you know what are the controls are available for your the syllabus and how to use for the controls design point of view. So we familiar, so by getting you become the familiar with all these control by making the practice. So first of all I start the session. Before I start the session, I just revise what are the classes or what are the controls are available under this component class. The first class is the button, list, checkbox, choice, label, text component. Then text component is the superclass of the text field and text area. So बटन, लिस्ट, चेकबॉक्स, चॉइस, लेबल, हम आज जो है बटन और लेबल के बारे में ही देखने वाले हैं. क्योंकि
बटन ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट वन है, और लेबल भी आपको सभी तरफ यूज़ करने का है। ये दो कंट्रोल हमको मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। सो बटन के बारे में हम देखेंगे पहले। बिफोर वी स्टार्ट द बटन, you know the exactly what are the component मेथड्स। ऑलरेडी हमने ये जो कंपोनेंट मेथड भी पढ़ा है। जो कंपोनेंट की मेथड है जैसे कि ऐड मेथड, रिमूव मेथड, सेट विजिबल मेथड, set size, set bounds, set layout, these are all the methods related with this component. But a student is does not knowing about that how these methods can be used in our the programming. So you become the more familiar with this the method of the component, because all these methods are used in the every program, most of the programs. So I think it is necessary to revise all these things. So just a simple revision लेते हैं यहाँ पे हम। कंपोनेंट क्या है? इट इज़ द विजुअल कंपोनेंट। विजुअल जो है स्क्रीन के ऊपर हमको जो भी कंपोनेंट प्लेस करने का है उसके लिए हम उसको विजुअल कंपोनेंट बोलते हैं। तो जहाँ पे बटन्स, टेक्स्ट फील्ड, ये जो कंपोनेंट है आपके, और ये जो कंपोनेंट है इट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर द जनरली करंट फोरग्राउंड, बैकग्राउंड। करंट उस जो ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड आपको देना है, या उसके सामने का ऑब्जेक्ट देना है, या टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट कलर चेंज करना है, तो ये हम कंपोनेंट के थ्रू कर सकते हैं, शेड बैकग्राउंड फोरग्राउंड मेथड। देन हमको एग्जैक्टली जो कंपोनेंट है वो कहाँ पे प्लेस करने का है स्क्रीन के ऊपर, ये कौन डिसाइड करेगा? कंपोनेंट क्लास। अगर ये बटन का भी ऑब्जेक्ट है तो ये डिसाइड करने का जो मेथड अवेलेबल है वो किस कहाँ पे अवेलेबल है? कंपोनेंट क्लास में। तो फाइनली इफ़ यू यूज द स्क्रीन position, then what you can be add the component into a container. So just I revise this component class। तो यहाँ पे जो है java डॉट लैंग्वेज डॉट ऑब्जेक्ट, ये जो सबसे मेन है, तो यहाँ पे उसके अंडर में कौन सा क्लास आता है? जो जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट कंपोनेंट। ये जो है हिरार्ची आप एक बार ध्यान में रखो। और कंपोनेंट के नीचे कौन कौन से क्लास आएंगे आपके? बटन, टेक्स्ट फील्ड। तो थोड़ा ये हिरार्ची इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक एग्जांपल लिया हूँ, जैसे कि ये एग्जांपल मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। तो यहाँ पे एक सिंपल फ्रेम का क्लास लिया है, और ये जो फ्रेम का क्लास जो है वो वहाँ पे, और लेबल क्लास है। सो हियर I create the object of the frame f, and then also create the object of the label class. So यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किए हैं, एक इज द फ्रेम क्लास एंड सेकंड वन इज द लेबल क्लास। So if you familiar with this all the methods related with this component, so I revise again. So these all the methods are important. So if you write in your notebook, then it is the familiar, you become the very familiar with all these methods. अब यहाँ पे पहला जो मेथड कौन सा लिया था हमने? ऐड मेथड। ऐड मेथड क्या है? इट इज द इंसर्ट अ कंपोनेंट ऑन द कंपोनेंट। मीन्स अगर आपको आगे कंटेनर में उसको ऐड करने का है, जो भी आपका जो भी कंटेनर है, जैसे कि कंटेनर कोई भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला है कि 4 टाइप्स ऑफ द कंटेनर है: विंडो, पैनल, फ्रेम, एप्लेट, विंडो, पैनल, फ्रेम, डायलॉग, दीज आर द कंटेनर्स। तो यहाँ पे उसको ऐड करने का है तो हमको कौन सा मेथड यूज़ करना है? ऐड मेथड, ऐड कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमने कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था? यफ। तो हमको जो है यफ, ये जो उसमें कौन सा आपका कंपोनेंट ऐड करने का है? सो लेबल L1। तो हमारा सिंटेक्स क्या रहेगा? यफ डॉट ऐड L1। तो हमको L1 जो है कहाँ पे ऐड करने का है? फ्रेम में। तो हमारा सिंटेक्स क्या रहेगा? यफ डॉट ऐड L1। वेरी सिंपल वन। सो एक बार ध्यान में रखो कि ये मेथड हमारे को सबसे ज़्यादा यूज़ करने का है, क्योंकि ऐड मेथड
अगर आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली ये कंपोनेंट कहाँ पे हमको ऐड करने का है, कौन से कंटेनर में ऐड करने का है, तो ही आप उसको रिलेट कर सकते हो. तो f dot add means you can be add the component of the you can add the object of this L1 into a frame f object. So second, remove आपको अगर कंपोनेंट रिमूव करने का है तो आप सेम सिंटैक्स, रिमूव कंपोनेंट सी, यहाँ पे रिमूव कंपोनेंट सी. तो आपको रिमूव करने का है तो आप क्या करने वाले, f dot remove L1. So same add and remove, these two methods you have to use many times in the programming. Then set layout means अगर आपको लेआउट मैनेजर के थ्रू आपके कंपोनेंट को लेआउट देना है तो आप उसको लेआउट सेट कर सकते हो. जैसे सेट लेआउट मैनेजर यम. तो यहाँ पे मैंने नल लिखा है तो कोई भी मैंने लेआउट मैनेजर यहाँ पे सेट किया नहीं है. तो देयर आर द for your syllabus 4 to 5 layout manager, flow layout, card layout, grid layout, all these things. Then set visible means you have to be set the properties of the frame, it is the visible or not. For this you always use the set visible is the true or false. इन सेट साइज मीन्स आपको अगर आपकी कंपोनेंट की साइज सेट करना है जैसे कि विड्थ एंड हाइट, तो आपको मेथड कौन सा यूज़ करना है, सेट साइज विड्थ हाइट. तो यहाँ पे f डॉट सेट साइज 400 है हमने यहाँ पे सेट किया है. तो उसके बाद में सेट बाउंड, यहाँ पे हमने जो भी कंपोनेंट है एग्जैक्टली आपको कौन से कोऑर्डिनेट पोजीशन पे सेट करना है, तो उसके लिए हमारा जो सिंटैक्स है सेट बाउंड INTX INTY इंटीजर विड्थ हाइट. तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमने उसका जो पोजीशन है वो हमने यहाँ पे फिट किया, ये किया है, उसको मेंशन किया है. तो यहाँ पे एक्स एंड वाई कौन सा है 50 100 100 30. तो उसका जो कंपोनेंट का एग्जैक्टली ये विड्थ कितना रहेगा 100 और हाइट कितना रहेगा 30, और यहाँ पे कौन सी पिक्सल पोजीशन पे वो स्टोर हो जाएगा 50 एंड 100. सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स दैट इज यूज फॉर योर द programming future point of view. So I think today we turn to the next one, our main program. अब यहाँ पे जो है हमारा मेन जो हमको प्रोग्राम देखने का है तो लेबल क्या है, लेबल इज द GUI कंट्रोल विच कैन बी डिस्प्ले योर द स्टैटिक टेक्स्ट. तो लेबल क्या करता है, लेबल क्लास के थ्रू हमारे कंस्ट्रक्शन कौन से कंस्ट्रक्टर के बारे में हमको पहले मालूमात होनी चाहिए. या कंस्ट्रक्टर कौन से है, लेबल, इट इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. देन लेबल विद द स्ट्रिंग्स मीन्स यू वांट टू बी सेट द स्ट्रिंग टू योर द लेबल. एंड देन थर्ड वन इज द लेबल स्ट्रिंग इंटीजर हाउ. सो यू कैन बी सेट द स्ट्रिंग विद द अलाइनमेंट. So there are the three constants of this alignment. The first is the label dot left, label dot center or label dot right. So it's a very simple control. So you have to use this control in many times. तो यहाँ पे हमारा क्या है, सिर्फ उसको string देना है और अगर उसके अलाइनमेंट भी सेट कर. तो अलाइनमेंट में कौन से लेफ्ट राइट सेंटर, उसके कॉन्स्टेंट्स वो चेंज नहीं होते हैं. तो सिंपल you have to mention the string into double quote. I take the simple, here is the another methods of these labels are available, just like the set text, get text, set alignment, get alignment. तो these are the different method label के जो है यहाँ पे methods है. तो all these methods you can be use at the run time. अगर आपको जो लेबल किया है, अगर आपको उसने स्ट्रिंग नहीं दिया है, but you want to be a set the label at the run time, then you also use the set text. get text का भी वैसे, अगर आपको कौन सा टेक्स्ट हमने लिया है उसके लिए सेट किया है तो गेट टेक्स्ट में भी कर सकते हैं. सेट अलाइनमेंट, आप एट द रन टाइम यू आल्सो सेट द अलाइनमेंट फॉर योर द लेबल. गेट अलाइनमेंट also you just get the alignment of the text in the label. And this is the simple example here. I create one label, a label, and you want to be a set the alignment at the runtime. So these methods are used at the runtime. Runtime means कैसे
कि आपको डिज़ाइन टाइम और रन टाइम के मीन्स जहाँ पे आप अपना प्रोग्राम पेंट के थ्रू आउटपुट देखना चाहते हो तो वो हम उसको रन टाइम बोल सकते हैं। तो एट द आफ्टर एग्जीक्यूशन आपको उसका प्रॉपर्टीज़ या जो भी है वो हम रन टाइम में उसके मेथड्स के थ्रू हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो सेट अलाइनमेंट सिंपल ई लेबल सेट अलाइनमेंट लेबल डॉट राइट. So I think you become the knowing about this set text, get text, set alignment, get alignment. Okay. So here is one simple example of this label. So I think all of you just knowing that what is the output first label and second label. तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं L1 L2. तो यहाँ पे हमने उसके सेट बाउंड उसको नाम दिए है फर्स्ट लेबल सेकंड लेबल, उसको पोजीशन सेट किया है सेट बाउंड थ्रू, और फाइनली you can be add these two object into a frame. Then finally we use the set size, set layout, set visible, all these properties हमने यहाँ पे सेट किए है. तो मैं मेरे ख्याल से आप यहाँ पे थोड़ा सा राइट नोट कीजिए. आई वेट 2 minutes. Or you also take the screenshot of this. Then if you write the program, then we turn to the next is the button one. What is the button? Button क्या है? Button is the frequently found in the GUI control. ये हमको सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कंपोनेंट है. हम उसके थ्रू हम जो भी प्रोग्रामिंग है सबसे ज़्यादा उसका जो मेन हमको बटन का ही ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि उसके थ्रू ही सब हमारा एक्शंस रिलेटेड विद द प्रोग्रामिंग्स वो हमारा होता है. तो बटन्स के बारे में आपको मालूम होगा, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे शट डाउन बटन यूज़ करते हो तो ओके बटन, ओके, these are the buttons. So what are the constructors of this button class? Button by default button and button with the string. Okay, सिंपल बट सिंपल है कंट्रोल. और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारे ये जो मेथड्स है सेट लेबल मीन्स यू कैन बी सेट द लेबल at the runtime. Get label means you also get the exactly information of the button by using the runtime set label get label. It's a very simple control. If you use in your the programming, then you become the very familiar with this. So you just get the example of this button class. यहाँ button class में क्या किया है हमने, यहाँ पे सिंपल एक फ्रेम लिया है और उसमें हमने बटन ऐड करके उसको पोजीशन सेट किया है. And then you just write the name of this label is the click here. User can be click this button and then finally you can be add this button into a frame object. And वहाँ पे हमने उसका जो साइज किया है सेट लेआउट सेट विजिबल. ओके, so I think you become the familiar with this, and then you just doing the program, then I make the sum. Okay, today we next to the next point.